Hello everyone, welcome to Study Point. So here's the basic information about me. You can read this and then we will going to start our today's lecture. Also you can get the free notes and PDFs from our Telegram group. So you can join the Telegram from the given link. I will going to give you the link in the description box and also in the comment section. Hello everyone. Hello students. So in this video we are going to continue our chapter 1 of history, and that is the rise of nationalism in Europe. So in the last lecture we have discussed about civil code of 1804, drawbacks of 1804, and a few measures, or you can also say few steps which were taken by French revolutionaries to create a sense of identity, or you can also say major steps which were taken by French revolutionaries to create a sense of nationalism in the people. So now we are going to discuss about few important dates, and next we will move to Treaty of Vienna and who were Giuseppe Mazzini. So let's start our today's lecture. So here we are going to discuss few important dates, and first is 1789. So you already know about this date. It is very important as you have already studied this one in class 9th. So French Revolution were held in 1789, and from 1799 to 1815 this was the ruling time of I have already told you Napoleon, and 1804 is related to Civil Code of Napoleon. So next thing is 1815. Battle of Waterloo happened in 1815. So this was held between Napoleon and Prague. Now here you have to learn the or read the full form of Prague. Prague countries, there's a group of few countries which is called Prague. So P for Prussia, R for Russia, A for Australia, and B for Britain. So you have to remember this one. Battle of Waterloo between Napoleon and Prague. So Prague means Prussia, Russia, Australia, and Britain. So next we will move to our next topic, and that is Treaty of Vienna. So let's see what happened in the Treaty of Vienna. So Bourbon dynasty was restored to power in France. And next one is a series of states created on the French boundary for French expansion in future. And the next one is German Confederation was left untouched. Main intention was to restore the monarchy being overthrown by Napoleon. Clear? तो काफ़ी कह सकते हो आप बेसिक से नोट्स हैं, मीन्स याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आंसर राइटिंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अगर आंसर राइटिंग आप पॉइंट्स में करते हो तो मार्किंग काफ़ी इजी और अच्छी हो जाती है, मीन्स एक्स्ट्रा मार्क्स आप गेन कर सकते हो. तो एक बार हम बायलिंगुअली भी इसको देख लेते हैं. क्या क्या पॉइंट्स इसमें हमने देखे. एक तो जो आपकी बार्बन डायनेस्टी है वो उसको रिस्टोर किया गया फ्रांस में, उसकी पावर वापस से आती है. उसके अलावा अ सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएटेड, मीन्स कुछ एक सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाए गए कहाँ पे, फ्रेंच की बाउंड्री पे. किस वजह से, जिससे कि प्रिवेंट किया जा सके कि जो फ्रांस है वो फ्यूचर में एक्सपेंशन ना कर ले. देखिए बाउंड्री से ही आपकी अदर कंट्रीज आकर के अटैक करती हैं, कई बार कॉलोनीज बना लेती हैं. तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, की फ्यूचर में फ्रेंच इस तरीके से एक्सपेंड ना हो जाए, उसके लिए बाउंड्री पे यहाँ पे कुछ स्टेट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं. ठीक है. जो जर्मन कन्फेडरेशन है उसको बिल्कुल अनटच रखा गया. ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए. उसके अलावा जो मेन इंटेंशन था वो क्या था कि जो मोनार्की सिस्टम पहले से चला आ रहा था और जिसको वापस से लाने की कोशिश की थी नेपोलियन ने, उसको यहाँ पे ख़त्म किया जा सके. ठीक है. तो ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं थे, यही एक दो चेंजेस थे जो आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट एक नेम है यहाँ पे गुजीपी मैजिनी. तो जैसे कि देखिए जब हम इंडियन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं या फिर फ्रीडम स्ट्रगल आप देखते हैं इंडिया का, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लीडर्स के नाम आप देखते हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू. देयर आर सो मैनी, राइट. सो देयर वाज when we you talk about nationalism in Europe, so here's a name Giuseppe Mazzini. It's very very important. So he's a leader from Italy. He born in January 1807, and he was also the member of a secret society of Carbonari.
और ही वॉज द फाउंडर ऑफ यंग इटली इन मर्सिलीज यंग यूरोप इन बर्नी, एंड ही बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू द रिपब्लिक। मीन्स वो चाहते थे कि जो इटली है आपका वो भी रिपब्लिक हो सके, फ्री हो सके, उसका यूनिफिकेशन हो सके। और काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स इन्होंने भी लिए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने भी किया था इसको फ्री कराने के लिए। वो हम चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इनका एक ओवरव्यू जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि जैसे कि नेपोलियन सिविल कोड हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में, तो उससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजंस ऑफ नेपोलियन सिविल कोड 1804, या आपसे कह सकते हैं एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड। मीन्स कितने भी फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 9 प्रोवाइड कराए हैं। देखिए कभी भी चीज़ें लिमिटेड मत कीजिए। मीन्स आप याद करके जाते हो कि मैं 4 ही याद करूँगा, पेपर में जितने पूछे जाएंगे या मोस्टली 2-3 पूछे जाते हैं तो मैं वही लिख दूंगा। आप 4 याद करते हैं, लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम के टाइम तक पहुँचते हैं तो मोस्टली आपके माइंड में 2 या 3 या मुश्किल से 1-2 ही रह जाते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आप एटलीस्ट 8 या 9 लर्न कीजिए। 8-9 में से 5 ऐसे होंगे कि जो आपको हमेशा ही याद रहेंगे। तो अगर आपसे 3-4-5 जितने भी पूछे जाएँ फिर आप इजीली आंसर कर पाओगे। बट आप लिमिटेड 3 याद रखें और पेपर में 6 पूछे जाएँ तब आपको प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तैयारी को करके चलें, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो देख लेते हैं कुछ प्रोविजंस इसमें। फर्स्ट है आपका, इट डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। देखिए इन्होंने प्रिविलेज कर दिया सारे ही सारे आपके जो भी राइट्स आप कह सकते हो कि बेस्ड ऑन बर्थ। मींस जैसे आप कह सकते हो कि कोई अगर बहुत हाई कास्ट में जिनका जन्म होता है उनको बर्थ से ही कुछ स्पेशल राइट्स या स्पेशल पावर्स मिलती हैं। और जो आपका नीचे कास्ट में जन्म लेते हैं या आप कह लीजिए एक गरीब फैमिली में जिनका जन्म हुआ है उनको कुछ कुछ चीज़ें बर्थ के टाइम से ही नहीं मिलती हैं। तो ऐसा जो एक सिस्टम था उनको ये हटा देते हैं नेपोलियनिक कोड में स्टार्टिंग में। नेक्स्ट ही स्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा इन्होंने क्या किया था, ही सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो वैसे ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो इसमें भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, लेक्चर 1 में हमने इसको अच्छे से किया हुआ है। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन पहले था, मीन्स एक के हाथ में ही पावर रहती थी, उनको इन्होंने लेवल्स पे बांट दिया और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स काफ़ी अच्छे थे। स्टार्टिंग में अच्छा अच्छा ही था खैर सब कुछ, लेकिन बाद में इन्होंने भी वापस कोशिश किया कि जो एक फ्यूडल सिस्टम या मोनार्की सिस्टम था उसको वापस लाया जा सके। नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। एंड नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही ऑल्सो फ्रीड peasant फ्रॉम serfdom and manorial dues. Next, in the town, guild restrictions were removed and transportation and communication system were improved. Next thing is he uniform the law, standardized weight and measurement, and a common national currency facilitated the movement and exchange of goods and capitals from one region to another. So these were the features of Napoleonic Code. I hope it's very clear. Next we will move to the features of Vienna Treaty. तो देखिए ये ट्रीटी भी हमने काफ़ी अच्छे से सॉरी ये ट्रीटी भी हमने अभी काफ़ी अच्छे से डिस्कस की थी, तो इसके भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम देख लेते हैं। क्योंकि देखिए जितना हमने पढ़ा वो शॉर्ट के लिए तो आपका इनफ है, बट अगर क्वेश्चन आपका ये लॉन्ग में आता है तब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना होगा। और आप पैटर्न यही रखें कि देखिए पैराग्राफ बना के अगर आप इन सारे पॉइंट्स का पैराग्राफ बनाते हो तो बहुत ही कम लाइन्स में वो सम अप हो जाता है। तो कोशिश आप करें कि आप अपने आंसर को ना पॉइंट्स में ही लिखें। तो पहली चीज़ तो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया मेट एट अ वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। मीन्स यूरोप के लिए एक सेटलमेंट ढूंढना ये चाहते थे। मीन्स एक समझौते के लिए ये सभी लोग मिलते हैं वियना में। कौन कौन लोग मिलते हैं, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, यूरोप। तो सारे ही लोग ये वियना में मिलते हैं, तो यहीं पे समझौता हुआ था, इसलिए इसको वियना ट्रीटी ही कहा जाता है, ठीक है। ट्रीटी मीन्स होती है आपकी संधि। दो पक्षों में जो भी बातचीत या समझौते से जब फैसले हो जाते हैं तो वो आपकी संधि कहलाती है। नेक्स्ट क्या हुआ था यहाँ पे, द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी, कांग्रेस मीन्स आपकी मीटिंग या कह सकते हैं आप एक समिति या
कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, एक छोटी सी मीटिंग भी कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। तो जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस होती है तो उसको होस्ट किया था आपके ऑस्ट्रियन चांसलर ने, जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिच। ठीक है। नेक्स्ट चीज, द डेलीग्रेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद ऑब्जेक्ट ऑफ undoing most of the changes that had come about in the Europe during the Napoleonic War। देखिए, नेपोलियन वॉर के टाइम पे जितने भी चेंजेस या जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर चेंजेस आपके यूरोप के अंदर आए थे, उन्हीं सबको लेकर के एक ये मीटिंग थी। ठीक है। क्योंकि यहीं पे ये चीज़ देखी गई थी कि जो नेपोलियन है वो वापस से मोनार्की सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी हमें रिमूव करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ था, जो बार्बन डायनेस्टी है उसको पावर में वापस से लाया गया। नेक्स्ट आपका, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। ये वही सेम चीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी सारी बाउंड्री स्टेट्स इन्होंने बना ली है जिससे कि फ्रांस फिर से फ्यूचर में एक्सपेंड ना हो सके। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ। नॉर्थ में किंगडम बनाया गया जिसका नाम नीदरलैंड रखा गया और जिसके अंदर ही आपका बेल्जियम आता है, जो कि हमने पढ़ा था आपका सिविक्स के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग में। उसके अलावा जियोना को ऐड किया गया पाइडमोंट एंड साउथ में, और प्रिशिया वाज आल्सो गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। तो वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न फ्रंटियर में प्रिशिया जो हमने पढ़ा था इसमें प्रैब कंट्रीज में, उसको भी कुछ नई टेरिटरीज दी गई। उसके अलावा ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली। ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली के पार्ट का कंट्रोल दे दिया गया। ठीक है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मींस अगर हम इसी को पैराग्राफ या एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ते तो यही ट्रीटी आपके लिए याद रखनी है, समझनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती, बट पॉइंट वाइज इसको समझना भी आसान है और याद रखना भी। सो आई होप इट्स क्लियर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।